Don't forget to like, subscribe and share the videos. Hi everyone, a big warm welcome to all of you on today's demo. This demo is specifically about Vastu Shastra. My name is Heer Chhabria, as you all know me. I am practicing astrology, numerology, tarot, Vastu, a lot more since the past 8 years, and I have been teaching also. So, आज की specific class Vastu Shastra के बारे में. As usual, the whole drill goes by. How many of you all know what Vastu is? या आप में से कौन है जो वास्तु प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस कौन करता है? It'll be nice if you can put off your camera. Put off your mics and put on your cameras. Yes. So Divyanshi, you practice Vastu? I can't see Divyanshi again. All right. आप में से कितने लोग practice करते? Put your hands up. No, nobody. Divyanshi, आप practice करते हो Vastu? Great. So you do it professionally? Very nice. Anybody else here who does? अच्छा, आप में से कितनों ने सीखा है वास्तु? How many of you all have learned? If you are not practicing, ठीक है, but at least learn करा है? नहीं? So all new students for me. First time demo ऐसा हुआ है जो मेरे सारे के सारे students को इस topic का पता ही नहीं है. Radhika. So are you practicing, Radhika, or how is it? Not able to hear me, Rashi. Something is wrong with your mic. No, there. ma'am. Just attend किया है classes, ma'am. Not Okay, practicing. great. Not practicing. So Ma'am, basically, little bit knowledge है. little bit knowledge है. Great, great. So, you know, little bit knowledge ज़्यादा dangerous होता है than someone having no knowledge at all, especially when it comes to subject like Vastu. Why? So I request all of you all, since ये बहुत ही ज़्यादा ये promoted campaign नहीं है, ये सारे आप लोग मेरे students ही हो, you all know the drill. Please put on your cameras and shut off your mics. Don't force me to put this entire class on mute. जितना हो सके, we will make it interactive, है ना? तो मुझे बार-बार सबको unmute नहीं करना पड़ेगा. So keep yourselves on mute and let's start. Yes. So the points that we are covering in today's class is what is Vastu, basically. ठीक है? What is the science behind Vastu and the 16 directions. अच्छा ठीक है, जो नहीं on कर सकता कैमरा कोई बात नहीं, पर जो कर सकता है कर दो. Let me see your pretty faces. So put on your cameras. Vastu होता क्या है? Vastu is a simple two-part word. Vastu. जहां तेरा वास है, मतलब whoever the native जिसका हम वास्तु देखते हैं, it could be the plot, it could be a land, it could be a home, it could be a rental property जहां आप रहते हो, it could be the office, it could be anything. जहां एक इंसान का वास होता है, उसे हम वास्तु कहते हैं. जहां तेरा वास है, वास यानी कि जहां एक इंसान रहता है. अब आप कहोगे मैम हम ऑफिस में तो रहते नहीं है. Just a second, there are people who have got the link. Give me a second. तो आप अगर दो क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तीन क्वेश्चंस रादर. मैम अगर हम ऑफिस में तो रहते नहीं है तो हाउ डज ऑफिस वास्तु अफेक्ट मी? जनरली एक इंसान कम से कम 6 से 8 घंटे एक ऑफिस के अंदर बिताता है. आपके जो दिनचर्या होता है, द एंटायर डे. आई जस्ट पुट माई सेल्फ ऑन स्पॉटलाइट. इज दैट बेटर? यस. ऑलराइट, मेरा स्पॉटलाइट हटती जाएगी. ऑलराइट. So generally एक इंसान का दिनचर्या क्या होता है? 24 घंटे का होता है. Everyone gets 24 hours. अमूमन 8 hours a person works, 8 hours a person sleeps, 8 hours just goes into here and there. So 8 hours what you're working, your office affects you, which is 1/3 of your life, 1/3 of your time that you're awake. Rather half of the time that you're awake. है ना? सो ऑफिस का वास्तु एक्चुअली मैटर करता है जब एक इंसान की मेंटल एंड फाइनेंशियल कंडीशन हमें देखनी है. अगर एक इंसान का वास्तु ऑफिस का सही नहीं है, वो या तो पैसा नहीं कमाएगा, या वो जो कमाएगा अपनी 100% पोटेंशियल पे नहीं कमाएगा, या उसे मेंटल इमोशनल चैलेंजेस वहां पर आएंगे.
Okay, by mental challenges what I mean is for example आपके ऑफिस प्लेस में कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, आपको इनफ इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, आपको प्रॉपर पे सैलरी नहीं मिल रहा है, पीपल आर इग्नोरिंग यू, हाउ इज योर मेंटल स्टेटस गोइंग टू बी? डेफिनेटली नॉट गुड, विच इन टर्न आपकी इमोशनल स्टेटस पे आ जाता है। आप पैसे बहुत अच्छे कमा रहे हो बट आपकी मेंटल इमोशनल स्टेटस सही नहीं है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट? दैट इज व्हाट इज ऑफिस वास्तु। सेकंड क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हमने रेंट पे घर लिया, यानी कि ये मेरा परमानेंट प्लेस है और मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने किसी और को रेंट पे दी, पर वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, क्या वो वास्तु मेरा इफेक्ट करेगा? यस, इट विल इफेक्ट बिकॉज प्रॉपर्टी आपकी है, आपके नाम पर है। Of course, the little things, जैसे कि उस इंसान ने दरवाजे पे क्या टांग दिया, दरवाजे की एंट्रेंस पे फिश टैंक रख दिया, या उस बेडरूम में उसने बेड अपना इस तरफ रखा, ये चीनी मीनी थिंग्स विल अफेक्ट द पर्सन स्टेइंग इन दैट प्रेमाइसेस, वो उसका वास्तु है। बट आपने वो जो सिचुएशन ऑफ प्लॉट है, सिचुएशन ऑफ द हाउस है, वो जो पैरामीटर्स को देखा, वो घर आपको बरकत देगा या नहीं, ये आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो घर आपका, घर, प्लॉट, ऑफिस, whatever. So far so good, rental thing. And the third most important thing, अगर मैं यहाँ रहती हूँ और मैंने लैंड ले लिया, तो क्या लैंड का भी वास्तु इफेक्ट करता है? Yes. Every property, whether it is your office, your rental property, your land, your home, your second home, your farmhouse, whatever, आपके घर की बालकनी तक, घर का गराज, जिस बिल्डिंग में आप रहते हो, जिस विंग में, जिस कॉर्नर में रहते हो, ये सब वास्तु पे डिपेंड करता है। यू विल ऑलवेज सी, हाउ मेनी ऑफ यू ऑलवेज स्टे इन द बिल्डिंग, आप देखोगे कि आपके बिल्डिंग के, आपके विंग के अगर 2 या 3 फ्लैट्स है, एक बाजू वाले को कई हद तक प्रॉब्लम्स होंगी और इस बाजू वाले को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। There will be a marked continuation of things somewhere, कुछ ना कुछ कड़ियां जुड़ती जाएंगी, या तो उनकी हैप्पी फैमिली नहीं होगी, या उनके यहाँ बच्चा नहीं होगा, या उनके यहाँ बीमार कोई ना कोई रहता होगा, समथिंग और द अदर विल ऑलवेज बी रॉन्ग। बिकॉज अगर ये मेरा ईस्ट है, सपोज मैंने यहाँ मुंह ईस्ट की तरफ रखा है, सामने वाले ने वो वेस्ट की तरफ रखा है, तो वास्तु कंप्लीटली चेंज हो जाता है आमने सामने में। और अगर उस तरफ फ्लैट है वो और चेंज हो जाएगा, इस तरफ है तो और चेंज हो जाएगा, राइट? सो आपकी बिल्डिंग में भी सबमर्सिबल पंप्स किधर है, आपके घर बिल्डिंग में स्विमिंग पूल किधर है, अगर आप टॉप फ्लोर पर रहते हो तो ओवरहेड टैंक किधर है, हर चीज आपकी वास्तु में इफेक्ट करती है। Are we so far so good with vastu? What exactly is vastu? Yes. Next point, science behind vastu. Is vastu a science or not? I am often asked कि अगर वास्तु इतना important है तो why do people across the world do not follow vastu? ये इंडियन का ही इतना बड़ा कल्चर क्यों है? सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी जितना हमारे यहाँ इंडियन में, जितनी हम डेप्थ में जाते हैं, which last point? I'm sorry, I don't even remember what I said. I just say it in a flow. ठीक है, आपको जो पॉइंट मिस हो गई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो यू कैन ऑलवेज सी फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। सो लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद व्हाट आई एम सेइंग। डायरेक्शन वाला तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है प्रियंका अभी तक, मैं तो 16 डायरेक्शंस होते हैं तो आने बाकी है, इट्स ऑल गोइंग टू कम। सो द साइंस बिहाइंड वास्तु, सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, एवरीबॉडी एग्रीज। किसी ने वेस्ट पे सनराइज देखा है? एनीबॉडी हियर? 150 लोग हैं, कोई भी नहीं? सबको पक्का पता है ईस्ट में राइज होता है, राइट? देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड there is a concept called UV rays, ultraviolet radiations, right? सन जो है, फॉर एग्जांपल ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा ईस्ट है, एक सिंपल फंडा देती हूँ। अगर ये मेरा ईस्ट है और ईस्ट को हम प्योर जोन कहते हैं, वेस्ट को हम इम्प्योर जोन कहते हैं, वेरी बेसिक समझा रही हूँ, इसमें डायरेक्शंस और भी इंटरनल आएंगे, हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से देख रहे हो ना, वेरी लार्जर एंड अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ठीक है? ये वाला ईस्ट है, ये वाला वेस्ट है, सन यहाँ से राइज होते 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 यहाँ पे जाएगा, approximately 6 in the morning to 6 in the evening, 12 hours period, right? So जो 6 बजे का जो सनराइज होगा और 12 बजे जो है वो राइट मेरे ऑन माय हेड होगा, और जब तक वो डूबेगा, तो जो सनराइज पे जो सन होता है उसकी पावर बहुत कम होती है। जितने सारे लोग वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग योगा करते हैं खुले में, गार्डन्स में, इट्स ऑलवेज इन द मॉर्निंग बिफोर लाइक 7-7:30। जो सन बेथ करते हैं, सन सोक करते हैं, इट्स ऑलवेज बिफोर 7-7:30 बिकॉज दैट इज वेरी गुड रेडिएशंस व्हिच वी गेट ऑन द ईस्ट। एम आई राइट? खाना सुबह पकता है, बंदे का काम पे तैयार होके जाते हैं, बिकॉज दैट्स द ईस्ट, दैट्स द प्योर जोन।
इसीलिए जब वो वेस्ट में आता है तब तक क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है, और एक इंसान थक हार के घर वापस आने को होता है अराउंड 6 o'clock in the evening, right? Because that is when the sun is in the west direction, powerless, about to go sunset, सेट होने वाला होता है, राइट? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है जब ये 12 बजे के आसपास से नीचे उतरता है, when it goes from the east to the west, वो जो डायरेक्शन यहाँ पे आ जाती है। इसीलिए ईस्ट की साइड की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो हमेशा शॉर्टर एंड लाइटर होती हैं, वेस्ट वाली हमेशा टॉलर एंड थिकर होती है। दैट इज वाई वेस्ट डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में जो वॉल्स होती हैं थिक बनाई जाती है, ईस्ट और नॉर्थ में थिन बनाई जाती है। There is always a reason behind when we say कि east and north are the pure zones, lighter zones, इनके ऊपर कुछ नहीं ज्यादा रखा जाता। आपके घर में भी देख लो, इसीलिए हम कहते हैं कि मंदिर ईस्ट और नॉर्थ में बनाना चाहिए। सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है अगर किसी का मंदिर वेस्ट या साउथ में हो, बिकॉज मंदिर इज प्योरिटी। यस, ये इम्प्योर जोन्स हो गए। एक सिंपल मैंने आपको फंडा दे दिया, हालांकि इसके बहुत सारे फंडाज हैं, ठीक है? फ्रॉम द यूनिवर्स, ब्रह्मांड से बहुत सारे कॉस्मिक एनर्जीज आती है। Obviously all the planets absorb the cosmic energies what they're supposed to and they discard what they're not supposed to, but उसमें से भी कई सारी कॉस्मिक एनर्जीज जो है वो टकराती हैं साउथ और वेस्ट डायरेक्शंस पे। इसीलिए अगेन वहां की वॉल्स को थिकर रखा जाता है और इम्प्योर कहा जाता है, वो नॉर्थ और ईस्ट में नहीं आती, बिकॉज अर्थ की अपनी एक्सिस में रोटेशन होती रहती है। सो नेचर ऑल्सो सेज, अच्छा ये जो है एवरीवन नोज व्हाट दिस एग्जैक्टली इज, दिस इज द कंपास। आई थिंक सबने देखा होगा, हालांकि इसे यूज करना बहुत लोगों को नहीं आता। आउट ऑफ योर आई वुड से ओनली 5% वुड नो हाउ डू यू डिटरमाइन द नॉर्थ डायरेक्शन। ये कंपास पे बेसिकली क्या होता है, अच्छा ठीक है, जो कंपास तो नवी चीज है, वास्तु इज अ न्यू थिंग, हम वास्तु शास्त्र नया पढ़ रहे हैं। शास्त्र क्यों बोला जाता है? इट इज एन एंशियंट एज ओल्ड, पुरानों में लिखी हुई जो साइंस है वो है वास्तु। पहले के जमाने में क्या होता था, मैं आपको समझाती हूँ कि पहले के, आप बोलोगे मैम कि पहले के घरों में वास्तु अप्लाई नहीं होता था, अब के घरों में क्यों होता है, ब्ला 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 ब्ला। एक सिंपल आपको चीज बताती हूँ। एक आप 30 बाय 30 का समझो स्क्वायर है, 30 इंच बाय 30 इंच, 30 मीटर बाय 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इक्वल इक्वल स्क्वायर है। यस, ना कोई कटकोना हुआ, ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, राइट? नो डायरेक्शन इज गॉन अप एंड डाउन, एम आई राइट एवरीबॉडी? अब इसमें क्या होता था पहले के, अगर आप घरों के पहले की मूवीज में जाके देख लो, आंगन फिक्स होते थे, तुलसी माँ हमेशा आंगन में होते थे, चप्पल हमेशा घर के बाहर एक पर्टिकुलर जगह पे, सबके दरवाजे एक ही डायरेक्शन में होते थे। यस, घर के बाहर रंगोली बनानी या सफेद कलर का कोई पेंट बनाना ये फिक्स होता था। bathrooms were always, keep yourselves on mute, bathrooms were always outside the house, never in the house। और कई घरों में मंदिर घर के अंदर नहीं होते थे। अब जैसे जैसे टाइम आता गया चेंजेस, बाथरूम घर के अंदर छोड़ो बेडरूम के अंदर पहुंच चुका है। दैट इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, तो कतई गलत है। आई एम सॉरी, कतई सही नहीं, इट्स नॉट राइट। बिकॉज वास्तु के हिसाब से जो ये टॉयलेट्स होते हैं, डस्टबिन होते हैं, ये अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, ठीक है? उसको अगर आपने बेडरूम में ले आया, और कईयों के तो बेडरूम नॉर्थ में है, कईयों के बेडरूम ईस्ट में है, प्योर जोन्स में बेडरूम अलाउड नहीं है ना? मंदिरों को घर में ले आए हर एक को। अच्छा मंदिर में क्या होता है, हम पीरियड्स में मंदिर के अंदर नहीं जाते। व्हाई पीपल हैव टू मैसेज सो मच, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम पीरियड्स में मंदिर के अंदर नहीं जाते। वी डोंट गो ड्यूरिंग आवर बैड डेज और मेंस्ट्रुअल डेज इनटू द टेंपल। चप्पल हम मंदिर के अंदर नहीं लेके जाते। अगर हमने घर में मंदिर रखा है, क्या हम घर में चप्पल जूते नहीं रखते? when we are in a periods, don't we roam around in the house? So at so many levels हम खुद ही अपने वास्तु दोष क्रिएट कर रहे होते हैं। हम क्या बोलते हैं, चलो चलता है मंदिर। आजकल सब जगह, पहले मंदिर कुछ होते थे, अब मंदिर सब जगह हो गए हैं। वास्तु बाय इटसेल्फ, अब जो घर हो गए हैं ऐसे कोने कोने, वो जिक्सॉ पजल कैसे आती थी पहले? हम लोग जिक्सॉ पजल खेलते थे। हाँ, एक कहीं से कोना निकला हुआ है, कहीं से कटा हुआ है। फ्लैट्स को अगर आप कभी भी जाके देखोगे, एनी ऑफ यू हु हैव अ फ्लैट का ब्लूप्रिंट अपने अपने घर का, कभी देखना कहाँ से कटिंग किस तरह से की हुई है।
कॉलम्स डालने के लिए, बीम्स डालने के लिए, राइट? पहले होता था नहीं. So पहले the houses automatically were always made according to Vastu, which is not the case now. इसीलिए भी जो सारी बीमारियां आ रही हैं, स्ट्रेस आ रही हैं, टेंशन्स आ रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, whatever is also a part of Vastu Dosh. जो अगर आप जैसे कलयुग में रहते हो, आप सतयुग की हरकतें तो कर नहीं सकते, आप सतयुग की एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते. So all you can do is, I don't want to discuss on that, Amrita. Everyone to their own. अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप करोगे. It's entirely individual's choice. This is something which is entirely an individual's choice. I can't comment on that. So the science behind Vastu is very, very clear. The whole point. That's okay. Can we stop asking questions onto the chat box, please? I would request. Otherwise, मुझे chat box भी बंद करना पड़ेगा और mic भी बंद करना पड़ेगा. नुकसान सबका होगा. So don't do that. अब अगर हम मैग्नेट की बात करें तो हम लोग कुछ पिछले जमाने की बात कर रहे थे. हाउ वुड समवन डिटरमाइन ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये चलो ईस्ट समझ में आ गया. अब तो हम नॉर्थ के बेसिस पे चलते हैं, राइट? पहले जब आप अगर बर्ड्स को भी देखोगे ना, माइग्रेट करने के लिए, दे न्यू विच डायरेक्शन दे हैव टू गो टू. बर्ड्स को पता होता था कि उनको कौन से डायरेक्शन. बर्ड्स क्या कंपास फॉलो करते हैं? बर्ड्स डू नॉट फॉलो कंपास. दे नो कि उनको कहाँ से कब माइग्रेट करके कहाँ पे जाना है, डायरेक्शंस. जब ट्रैवलर्स होते थे जो डिजर्ट्स में गुम हो जाते थे, वो लोग क्या करते थे, ऐसे टाइम देख के कि अच्छा ये टाइम है, अप्रोक्सीमेटली इतना बजा होगा, अप्रोक्सीमेटली ये पहर चल रहा है, जो टाइम कहते थे पहर चल रहा है, राइट? और उससे रेत उठा करके देखते थे कि रेत किस तरफ चल रही है ना, तो वो उस तरफ चल पड़ते थे. दैट वाज देयर डायरेक्शन डिटर्मिनेशन, जो हमारे लिए बहुत इजी है कंपास में. कंपास में बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. अर्थ हैज मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे सेम जो डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ को नॉर्थ, साउथ को साउथ, आपस में रिपेल करते हैं एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस आपस में अट्रैक्ट करते हैं. सिंपल फंडा. आई थिंक एवरीवन इज वेरी क्लियर. अब आप बोलोगे कि मैम ह्यूमन बॉडी और अर्थ के मैग्नेटिज्म का क्या लेना देना है? व्हाई इज द ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व? डोंट आवर ह्यूमन बॉडीज हैव मिनरल्स आल्सो? क्या हम में आयरन नहीं है? क्या हमें अगर आयरन है तो हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से फर्क नहीं पड़ेगा? Right? How many of y'all have heard? Please don't open your mics just to make it interactive. How many of y'all have heard कि head जो है वो हमेशा साउथ की तरफ रहना चाहिए और पैर नॉर्थ की तरफ, and never the head on the north? How many of y'all have heard this? Please यहाँ पे hand raise कर दो. I want to know how many people. Pratiksha says this. Okay. Great. So 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32. All right. 32 people know this. मतलब थोड़ी सी knowledge है कि नॉर्थ की तरफ सर नहीं होना चाहिए, राइट? एवरीवन, ग्रेट. सो इसी तरह की छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, राइट, हमें देखना है कि हाउ इज वास्तु अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर पर्सन. नॉर्थ की तरफ सर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ईस्ट की तरफ पैर नहीं होने चाहिए. जहां सनराइज हो रहा है वहां पे पैर रख के कैसे सो सकते हैं? एक सिंपल लॉजिक है कि नहीं है? डायरेक्टली ईस्ट की तरफ पैर नहीं होने चाहिए. सिंस ईस्ट एंड नॉर्थ आर प्योर जोन्स, वहां पे टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस, वेरी वेरी सिंपल, है ना? अब आप बोलोगे अगर मैम है तो हम क्या करें? अब अगर है तो हम क्या करेंगे? हम रेमेडीज कर सकते हैं. पहली बात तो आई वुड सजेस्ट समवन हु हैज दिस टू ऑब्वियसली चेंज द प्लेस, बट दैट इज अगेन ऑब्वियस कि हर कोई नहीं कर सकता. तो इसकी हम, अगर आपसे वो, आपके पास वो ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो उसकी हम रेमेडीज करवा सकते हैं. यू कैन बी हेडबेंट, आई कैन नॉट डू योर रेमेडी बिकॉज यू ऑलरेडी स्टेइंग ओवर देयर, और इसका हमको आता नहीं है. ऑफ कोर्स कोई लेने जाएगा घर या प्लॉट या व्हाटएवर, तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्शन पे ये मत करो, या डोंट टेक दिस हाउस बिकॉज यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है, यहाँ पर उसका सपोज गलत जगह पे पानी जा रहा है या व्हाटएवर, है ना? वास्तु इज बेस्ड ऑन बेसिकली 5 एलिमेंटल थ्योरी बेसिस: वाटर, अर्थ, एयर, फायर, स्पेस. ये पांचों एलिमेंट्स आपस में इंटरट्वाइंड है, एंड सो इज वास्तु. इन्हीं के बढ़ने घटने की वजह से, जिसे हम कट एंड एक्सटेंशन कहते हैं, राइट, आपके घर की वास्तु एंड हेंस योर बिहेवियर, योर सिचुएशंस लाइफ में चेंज होती हैं, आती हैं, जाती हैं.
Now we come to the point of 16 directions. हम सब 4 directions जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल तरीका, पहले तो मेरे पास फोटोग्राफ भी है, लेकिन मैं आप लोगों को फिलहाल इसे ड्रॉ करके बताऊंगी। आई एम गोइंग टू सेंड दिस पिक्चर ऑन टू योर ग्रुप्स, बट स्टिल पहले हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क। Is my screen visible, Ayushi? My screen is visible? Yes. So all of y'all can draw this along अगर आप चाहते हो, right? All right. सबसे पहले हम डिनोट करेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। Spare me for my handwriting. North, south, east. ठीक है। अब इसके बाद इसके बीच के डायरेक्शंस आएंगे। ये हमारे 8 डायरेक्शंस हो गए। ऐसे तो टेढ़े मेढ़े बनेंगे। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का, मैंने ये साउथ यहाँ रखा है, साउथ ईस्ट बिकॉज आई हैड नो प्लेस हियर। साउथ और वेस्ट के बीच का साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का नॉर्थ वेस्ट। अब इनके बीच भी डायरेक्शंस आती हैं which will go like this. मेरे को साउथ यहाँ से हटाना पड़ेगा। Alright. ठीक है। अब नीचे वाला प्लीज इमेजिन कर देना वो साउथ है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का NNE होता है विच इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इट इज ऑन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का ENE होता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का हो जाता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच का होता है SSE विच इज साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। SSW के बीच, सॉरी, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में आता है SSW। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है WSW। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आता है WNW। और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आता है NNW। ये है आपकी 16 डायरेक्शंस। और 2 डायरेक्शंस और होती हैं विच इज द सेंटर विच इज कॉल्ड द ब्रह्मस्थान। और उसके बाद होता है आकाश विच इज ओपन टू द स्काई विच इज स्पेस। Is everyone clear with this? Yes, I'm sending a picture into your groups. हर जोन का हर एक जोन का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये जोन से हम ये चीज देखते हैं। ये जोन हिलने से ये चीज में गिरावट या उछाल आती। क्लियर? आप लोग जिस ग्रुप में हो, यू कैन चेक द ग्रुप। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉर्थ इज अपॉर्चुनिटी। हम लोग इस तरफ चलते जाएंगे। NNE जो होता है वो हेल्थ, आइडिया एंड सॉल्यूशंस होता है, राइट? NE इज फोकस एंड आइडिया। ENE इज एंटरटेनमेंट। ईस्ट इज मार्केटिंग। ESE एनालाइज। SE, अब ऑफ कोर्स SE इज ऑब्वियसली साउथ ईस्ट, ये मुझे क्लियर घड़ी घड़ी नहीं बोलना है। SE इज लक्ष्मी। SSE is confidence. S is relaxation and brands. SSW is disposal, इसको zone कहते हैं, disposal zone कह सकते हैं। SW is skill and stability. WSW is influence and accumulation. West is desires. WNW is depression. NW is support and imagination. NNW is attraction.
ये आपके 16 जोन्स का मीनिंग और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी लाइफ की जो ये चीजें हैं ये इन जोन्स पे डिपेंड करती हैं, या ये जोन्स इन चीजों को आपकी लाइफ में लाता या लेके जाता या बढ़ाता या घटाता। अभी किसी का, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, किसी के भी अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गड़बड़ है, गड़बड़ कहाँ से आती है? कट्स, रिडक्शंस, एक्सटेंशंस, राइट? एलिमेंट्स को बिगाड़ना, गलत एलिमेंट्स को वहां रखना, एंड मोर एंड मोर एंड मोर। ठीक है, ये बहुत सारे मोर्स होते हैं जो हम सीखेंगे, राइट? I have already sent it in the group. Now there's nothing beyond this that I can give. अगर आपको चाहते तो वो तो of course class में आएगा. What will I give the zones and quality in writing? It will come in the class. ये तो सिर्फ एक पिक्चर है। SSC में जब गड़बड़ हो जाती है तो कॉन्फिडेंस, या एक इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है या तो कॉन्फिडेंस में लैक करता है। जब ये जोन बैलेंस्ड होगा एक इंसान परफेक्टली कॉन्फिडेंट होगा। It is just as simple as that. Is it? How many of you feel it is as simple as this? किसी को लगता है ये बहुत सिंपल सी चीज है? बिल्कुल भी नहीं है। गुरप्रीत कौर, नहीं है। दिस इज नॉट एज सिंपल, बिकॉज इस जोन को डिटरमाइन करना, चलो ठीक है पकड़ भी लोगे, चलो ये एसएससी है, बट उसके अंदर बहुत ज्यादा से मोर, बहुत कुछ है। ठीक है, सो दीज आर द 16 डायरेक्शंस ऑफ योर वास्तु, जिसमें दो और आएंगे, आपका ब्रह्मस्थान विच इज द सेंटर ऑफ योर वास्तु, एंड द स्पेस विच इज द ओपन एरिया टू द स्काई। वास्तु का एंटायर दारोमदार जिसे हम कहते हैं, बेस कहते हैं, वॉट एवर, इज एंटायरली बेस्ड ऑन योर 16 zones which come from the 8 zones which come from the 4 main zones. पहले ये 4 डिटरमाइन होंगे, उनके बीच के डिटरमाइन होंगे, फिर उनके 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 बीच 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 के चलते जाएंगे। मैं इसे महावास्तु, वास्तु कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं दे रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये एंटायर वास्तु इसी के बेसिस पे है। People also bring up very vast. People also bring up 32 directions in वास्तु। हो सकते हैं, जब 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 नहीं हो सकता। It's always going in the double, आगे जाके 64 भी आ जाएंगे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बट करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जहां तक की नीड है उतनी इनफ है। As of now with this we are enough. I am not saying कि हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, हम आगे सीखेंगे ही नहीं, होगा तो कर लेंगे। So as of now this is more than enough. Let's talk about the course, what this course is all about, and then we go to the question answers. Yes, everyone ready? Chalo.